Okay, students, a very good morning and welcome back to class 12 science lecture on subject physics. And topic that we were going ahead was electromagnetic induction. जिसमें last lecture जो हमने किया था that was based on self induction. Here we did self induction, the induced current, induced EMF due to an inductor. ठीक है, और उसमें काफी चीजें हमने पढ़ ली थी that how the current, the direction of current induced EMF is in the opposite direction to the current. If it is increasing, it is in the same direction to the external current if the current is decreasing in a particular direction. Okay, so today's topic is again based on electromagnetic induction but with a different view. और कोई बहुत टिपिकल बहुत डिफरेंट नहीं है, तुम पढ़ चुके हो, तुमको थोड़ा सा आइडिया है सर्किट का. So we'll be going ahead and today we will be studying LR circuit. Today we will be studying LR circuit. ठीक है, what are the features and what happens in an LR circuit. Okay, so now when we talk about an LR circuit, basically we are talking about an inductor. Basically we are talking about an inductor circuit. और यहाँ पे LR जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस लिखा है, तो उसको लिखने का सेंस ये नहीं है कि वहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर भी है. Now inductor which is made up of a conductor will have its own resistance also. होगा ना भाई, एक इंडक्टर जो तुमने लगाया है उसका अपना खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा. We are talking about that resistance over here. So when you deal with LR circuit, you will be dealing with an inductive circuit. ठीक है, so let's have a circuit and let's study different things. So if suppose I have an external source of a battery which is connected with an inductor which has a resistance of R, which has a resistance of R. ठीक है, इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस R है. Okay, self inductance L है, EMF E has been supplied and we have a switch S which at an instant or at a given time अभी ये ओपन है, अभी ये स्विच ओपन है. ठीक है, now to observe this situation we go ahead in a very systematic way and let us discuss what happens at time t equals to 0. Let's think at time t equals to 0. What would have happened at time t equals to 0? करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा होगा इनिशियल कंडीशन में स्विच S ओपन है, but of course current I would be 0. ठीक है, now just an assumption कि if there was no inductor, then on closing the switch, ध्यान से सुनिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है. तो जिस समय अज्यूम करते हैं कि सपोज इंडक्टर यहां पे नहीं है, इंडक्टर इज नॉट देयर प्रेजेंट इन द सर्किट एंड यू सडनली क्लोज द स्विच, तो what would have happened to the current in the circuit? What would have happened to the current in the circuit? उस समय करंट का इस सर्किट में इंक्रीज कैसा होगा? बट ऑफ कोर्स अगर इंडक्टर नहीं होगा, कोई अपोज करने के लिए नहीं है, then current would have instantaneously reached its peak value. The current would have reached its maximum value in the circuit. If there was no inductor, then on closing the switch, the current would have reached its peak or maximum value. कितनी होती है वो मैक्सिमम वैल्यू? करंट I is given as E by R, Ohm's law. ठीक है, and let the peak value of current be I. तो अगर वहां पे इंडक्टर नहीं होता
तो जैसे तुम स्विच क्लोज करते वैसे ही करंट अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाता है, विच इज ई बाय आर डिनोटेड बाय आई। ये तो खेल तब हो गया जब हमने अज्यूम किया कि अगर इंडक्टर ना होता और हम स्विच क्लोज करते। ना एज इंडक्टर इज देयर, ठीक है, अब क्योंकि इंडक्टर वहां पे है, ठीक है, if the inductor is there, so what will happen, ठीक है, what is going to happen when this inductor is assumed कि हाँ ये इंडक्टर है और स्विच हम क्लोज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो क्या होगा, ठीक है, ये लिया हमारा इंडक्टर, ये वाली external source of the battery, you have a switch, inductor, resistor, battery which gives a current I, resistance R and an inductor L। अब क्या होगा कि इस केस में जब तुम स्विच S क्लोज करोगे, there will be a self induction process, एक इंड्यूस करंट होगा इंडक्टर में, सेल्फ इंड्यूस करंट, which will be in which direction? Now this I want, इसका डायरेक्शन क्या होगा? What will be the direction of the induced current through the inductor? What will be the direction of induced current through the inductor? जल्दी बताओ। What will be left? Great, ठीक है, तो लेफ्ट की ओर होगा। That means it would be in the opposite direction। एक induced current ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, सो इंड्यूस्ड करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन सो एज टू डिक्रीज। अब खेल क्या हो रहा है? खेल ये हो रहा है कि ये करंट यहां से इंक्रीज करता जा रहा है, and it will tend to reach its maximum value, it will tend to reach its maximum or peak value which is E by R। धीरे धीरे करके it will reach to its maximum value E by R। That means I can say that at some time t after a long time, so we can say at t tending to infinity, this current would reach its peak value when inductor is there, when inductor is कंसिडर, ठीक है, तो इंडक्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप का सिस्टम होगा कि धीरे धीरे करके स्लोली इट विल रीच इट्स पीक वैल्यू। अब पीक वैल्यू के ऊपर तो बढ़ेगा नहीं, पीक वैल्यू के ऊपर तो करंट बढ़ेगा नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा। दैट मींस आई कैन से दैट नाउ इट हैज रीच्ड इट्स स्टेडी स्टेट, नाउ इट हैज रीच्ड इट्स स्टेडी स्टेट। That means at t equals to 0, current 0 था, at t equals to infinity, current reached to its peak value after which there will be no increase। That means now the current is in the steady state। That means now the current is in the steady state। पर बात खेल की ये है कि 0 पे 0 था, infinity पे steady state है। What about this interval? What about this interval? That means between t equals to 0 और t equals to infinity पे, उसके बीच में क्या खेल हुआ वो हमको रीड करना है। What is the process and how is the process that took place in between t equals to 0 and t equals to infinity? Answer. So let's see that particular game, ठीक है, अब उस चीज को हम गौर से देखते हैं। Okay, now in the last lecture when we studied self induction, हमने उसमें एक और चीज रीड करी थी कि हम इंडक्टर को सेल कैसे अज्यूम करते हैं, इंडक्टर को सेल कैसे अज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पे वही खेल खेलते हैं। तो सेम सर्किट प्रिंट आउट करते हैं, ठीक है, एंड दिस टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट the inductor as a cell, ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर देता हूं,
ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा, वो कितना होगा, दैट विल बी माइनस एल डी आई बाय डी टी, हमको मालूम है, यह है रेजिस्टेंस आर। आई वांट टू नो कि व्हेन यू चेंज दिस इंडक्टर, अज्यूम करते हैं जब इसको कि ये इंडक्टर नहीं एक सेल है, बिकॉज सेल्फ इंडक्शन मतलब ये सेल की तरह एक्ट करेगा, तो विच पॉइंट बी और पॉइंट सी विल हैव अ पॉजिटिव पोलैरिटी, जल्दी बताओ, विच ऑफ देम विल हैव अ पॉजिटिव पोलैरिटी। एक्सटर्नल करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, एक्सटर्नल करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, very good one. B will have a positive polarity क्योंकि self induced current, no, early should not see, early should not see, it will be B। देखो कैसे, गौर से देखो, चल यहाँ पे LDI by dt जो इसका इंडक्शन होगा, इधर देखो, ये करंट इधर आ रहा है, एक्सटर्नल करंट इधर आ रहा है, खाली इंडक्टर का ही ले लेते हैं, ये आ रहा है एक्सटर्नल करंट, ऐसे ही आ रहा है ना, ये फिगर को बड़ा करके बता। Now the induced current will have a direction opposite, induced current will have a direction opposite, opposite direction में होगा ना induced current, तो जब induced current इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल किधर आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल इस टाइप से आएगा ना, किस कहीं की ओर आ रहा है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो पॉजिटिव टर्मिनल किस आएगा, टुवर्ड्स B। अर्निश क्लियर हुआ, अर्निश क्लियर हुआ, लास्ट लेक्चर में कल हमने किया था, इज इट क्लियर, यस बेटा, ठीक है। तो देखो अब मैं काम करता हूं, अब मैं इंडक्टर हटा के और यहां पे इसको एक सेल से रिप्लेस कर देता हूं जिसका ईएमएफ कितना है, एल डी आई बाय डी टी, एल डी आई बाय डी टी, ठीक है, और ये इंड्यूस करंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देगा, ठीक है, ये इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में देगा। नाउ एट सम टाइम, at some time t which is greater than 0 and less than infinity, current I which would be greater than 0 and less than I1, ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में कोई एक करंट I होगा which is greater than 0 and less than I1। अब गौर से, now if you see in the circuit, if you see in the circuit, ठीक है, ये करंट आई जा रहा है इधर, ठीक है, तो नेट पोटेंशियल अगर देखोगे इन दोनों के बीच का, इस एंड ये दो टर्मिनल्स और ये दो टर्मिनल्स का, ठीक है, सो व्हाट कैन आई से, आई कैन से E प्लस, सॉरी E माइनस, क्योंकि अपोज कर रहा है, E माइनस एल डी आर बाय डी टी प्लस आई आर इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं ना, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू 0। किरचॉफ्स लूप रूल भी समझ सकते हो कि पूरा पूरा एक क्लोज लूप है, नेट पोटेंशियल उसका 0 होगा। आई कैन स्टेट इट इन दिस फॉर्म, P minus L di by dt plus IR is equals to 0। Now same expression I can write it as E minus IR, E minus E minus IR is equals to L di by dt। Quite clear? E minus IR ये ओपन कर लिया, माइनस एल डी आई बाई डी टी को इधर लेकर, ठीक है, या कर देता हूं स्टेप, याद हो दिक्कत ना है। I can say E minus L di by dt minus IR is equals to 0। So now this becomes E minus IR is equals to L di by dt, ठीक है, E minus IR is equals to L di by dt, ठीक। Now I can change the form and I can say dt by L, dt by L, dt by L is equals to di by E minus IR, E minus IR, ठीक है। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट करंट
at a given time. I need to find out current at a given time. तो देखो उसी फॉर्मेट में आ गया, उसी फॉर्मेट में आ गया। अब अपने को क्या करना है? सिंपल, I need t and I in terms of t. So I need to integrate it. I need to integrate it. Integrating both sides. ठीक है, तो भाई इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रल dt by L is equals to इंटीग्रल di upon e minus ir, e minus ir। कहां से कहां तक? अब ये t को इंटीग्रेट करो तो t कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया? 0 to t तक, ठीक है, 0 से t तक, ठीक है, एट सम टाइम t, ठीक ना। i को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से टाइम t पे करंट क्या था? i था। टाइम t पे करंट क्या था? i अज्यूम किया था भाई। 0 पे 0 था, इंफिनिटी पे i नॉट था, बट एट पर्टिकुलर टाइम t करंट कितना था? i। इज इट क्लियर अप टिल हियर? इज दिस पार्ट क्लियर अप टिल हियर? जल्दी से बताओ तो फिर आगे बढ़े। क्लियर है? चलो भाई, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट का फॉर्म तुमको याद होगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इंटीग्रल dt by L 0 to t is equals to इंटीग्रल 0 to I di by e minus I r। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए dt का इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, मिल जाएगा हमको, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, तो ये हो गया t by L, ठीक, इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल ऑफ di अपॉन e माइनस ir, di अपॉन e माइनस ir। यू मस्ट हैव मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, खास तौर पे आप लोगों ने ये फॉर्म पढ़ा था, इंटीग्रल dx अपॉन b माइनस ax। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रल dx अपॉन b माइनस ax फॉर्म पढ़ा है, ये पढ़ा है फॉर्म। इसका इंटीग्रल बताओ जल्दी से। इंटीग्रल dx अपॉन b माइनस ax, अगर नहीं आ रहा तो देख लो, दिस इज log बेस t mod b माइनस ax होल अपॉन माइनस a। याद आया? b माइनस ax अपॉन माइनस a की log ऑफ b माइनस ax अपॉन माइनस a। अमन, b माइनस ax अपॉन माइनस a की log ऑफ b माइनस ax अपॉन माइनस a। बेटा चेक करो, लॉग के साथ, ठीक है। सो दिस विल बी, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इस फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो log e mod ऑफ b माइनस ax, तो e माइनस ir होल अपॉन माइनस a, तो माइनस a कितना है? माइनस r। लिमिट सभी पुट करनी है, कहां से कहां तक? 0 से i तक, ठीक। अब r तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, माइनस r, तो ये हो जाएगा माइनस r t बाय l, माइनस r t बाय l इज इक्वल्स टू, अब log बेस t, ठीक है, तो एक बार हाईएस्ट वैल्यू रखी तो क्या हो गया? log mod e माइनस ir सेम रहा। एक बार 0 रखी तो क्या बचा? खाली log e बचा, माइनस log e बेस t। ओके, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ log a minus log b is log a upon b, so I can say minus r t by l is equals to log of a upon b, तो e minus ir upon e। quite clear? ठीक है भैया, log a minus log b is log a upon b। Now what I can do is I can take anti-log, ठीक है, taking anti-log एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा ये। So I can say therefore e की पावर माइनस r by l into t is equals to
E minus IR होल डिवाइडेड बाय E। यस, ठीक है, केवल सॉल्व करना है इसको। तो अब इसको लिख सकते हैं E की पावर माइनस R बाय L इंटू T इज इक्वल्स टू, ये ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस IR बाय E। ओके, 1 माइनस IR बाय E। अब IR बाय E को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्योंकि हमको I चाहिए इन टर्म्स ऑफ T, बिकॉज वी नीड I इन टर्म्स ऑफ T। ठीक है ना, ब्रेक कर लेते हैं। तो IR को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो दिस विल बी IR बाय E is equals to IR by E is equals to 1 minus E की पावर माइनस R by L multiplied by T। ओके, क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? सो आई कैन से नाउ I is equals to E by R whole multiplied by 1 minus E की पावर माइनस R by L into T। Okay, now what is E by R? What is E by R? What can you replace E by R with? E by R को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हरी अप, E by R को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? I know, very good. E by R is the peak value. E by R is the peak value. So as E by R is equals to I naught, therefore I can say I is equals to I naught into 1 minus E की पावर minus R by L whole multiplied by time. This is the expression for current I at any given time t greater than 0 and less than infinity. बट ये खत्म नहीं हुआ है, अभी यहां पे एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा which is tau, which is nothing but the ratio of inductor to resistance L by R, also known as inductive time constant, also known as inductive time constant, इसको ताऊ बोलते हैं। तो यहां पे जो ताऊ इज इक्वल्स टू L by R, तो बेटा R by R कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ताऊ। सी L by R इज ताऊ, तो R अपॉन L क्या हो जाएगा? 1 by tau. So therefore this can be written as I is equals to I naught 1 minus E 1 by tau minus T by tau. I is equals to I naught into 1 minus E की पावर minus T by tau. अब बात आती है कि सर व्हाट एग्जैक्टली इज ताऊ, ताऊ को और अच्छे से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, चलो अभी डिफाइन करते हैं। ताऊ कैन बी वेरी कंफर्टेबली अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन इंडक्टर, फॉर अ गिवन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब वो कांस्टेंट क्या होता है? At time t is equals to tau. At time t is equals to tau. तो t की जगह tau पुट करके देखो क्या आता है? तो you will get I is equals to I naught 1 minus e की पावर minus t by tau, tau कितना वो भी t है, तो minus t by t, which is I is equals to I naught into 1 minus e की पावर minus 1। अब e की पावर 1 minus 1 क्या हो जाएगा? 1 upon e, तो I is equals to I naught 1 minus 1 divided by e। 1 divided by e has a constant value, 1 divided by e has a
कांस्टेंट वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ 1 by e is equals to 0.37, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 0.37. So I is equals to I naught 1 minus 0.37, तो ये आ जाएगा 0.63. So therefore I can say I is equals to 0.63 I naught, लिख सकते हैं. और the same thing can be written as I is equals to 63% of I. Either of the ways you can write. You can say I is equals to 0.63 I naught, or you can say I is 63% of I naught. I is 63% of I naught. So what is tau? What is tau? Tau क्या है? अब यहां पे करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग, सो द टाइम tau is the time in which current increases to 63% of its maximum value I naught. फिर समझ में आ रहा है? Is it clear to all of you what is tau? How the current grows? How to find out the current at time t? Clear है? Yes, please. Is it clear? Is it clear to all of you? ठीक है, चलो देखो. ठीक, तो ये हमको क्लियर हो गया. नाउ सिमिलरली विद दिस लेट्स हैव अ ग्राफ. तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले क्लियर होना है कि जो करंट इंडक्टिव सर्किट में ग्रो करता है, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट, इन एन आरएल सर्किट इज एक्सपोनेंशियल, इट इज नॉट लीनियर. ठीक है, याद रखना. हेंस ग्रोथ ऑफ करंट in an LR circuit is exponential. It's not linear. So if you need to make a graph of current versus time for an RL circuit, you will have a graph of this form, where the steady state, that is the peak value of current I naught, is reached at time t equals to infinity. And from here again you can define tau. यहां से हम tau को भी बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. This is time tau in which the current reaches to 63% of its peak value. This is how the process of growth of current takes place in an LR circuit. In an LR circuit, RL circuit, whatever you want to say, LR circuit. ठीक है? चलो, अब अगर तुमको ये क्लियर हो गया तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं जिससे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको आते हैं, नॉट ओनली इन बोर्ड बट आल्सो इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको ध्यान रखना है. देखो, जिस समय हम बात कर रहे थे when we started this particular topic, तो we talked about कि अगर इंडक्टर नहीं होता तो, ठीक है, we talked about the initial time t equals to 0. ठीक है, we talked about initial time t equals to 0. तो तुमको ध्यान क्या रखना है? देखो ध्यान से. For the time t equals to 0, याद रखना, जब सर्किट में क्वेश्चन दिया रहेगा और टाइम t equals to
जीरो की बात कर रहा होगा, इनिशियल स्टार्टिंग की बात कर रहा होगा, देन consider the inductor part as open circuit. Inductor part as open circuit. कब? At time t equals to 0. At steady state. At steady state. तो steady state वैसी स्टेट थी जब करंट रीचेस टू इट्स पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू पे कब पहुंच जाता था? जब हम अज्यूम करते थे कि यहां कोई भी इंडक्टर नहीं है, जब हम अज्यूम करते थे कि यहां पे कोई भी इंडक्टर नहीं है, तो एट स्टेडी स्टेट कंसिडर द इंडक्टर पार्ट, जहां इंडक्टर लगा था उस हिस्से को, इंडक्टर पार्ट टू बी शॉर्ट सर्किटेड, टू बी शॉर्ट सर्किटेड। कहने का मतलब कि पहला वाला पार्ट जब इंस्टेंटेनियस, जब तुम इंस्टेंट पे लोगे, t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल पे लोगे, तो वहां पे कंसीडर करना है कि इंडक्टर पार्ट इज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कोई भी करंट इंडक्टर वाले पार्ट से फ्लो नहीं कर रहा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको। और एट स्टेडी स्टेट जब करंट पीक वैल्यू पे था तो हमने कंसीडर किया था कि वहां पे इंडक्टर ही नहीं। देन कंसीडर द इंडक्टर पार्ट टू बी शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड, ओपन नहीं है, इंडक्टर गायब हो गया, तार है, इंडक्टर गायब हो गया और कनेक्शन है, ऊपर वाले में कनेक्शन ही नहीं है, वो कनेक्शन ही हटा दिया उद्देश्य से। रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स डू अ प्रॉब्लम टू मेक दीज टू पॉइंट्स मोर क्लियर टू यू, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने अगर सैंपल पेपर या दूसरे कंपटीशन के पेपर देखे होंगे तो तुमको शायद इस टाइप के चित्र दिखे होंगे या प्रॉब्लम दिखे होंगे। लेट्स हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड currents I1 and I2 at number 1 t equals to 0, number 2 steady state, ठीक है। और ये रहा सर्किट। We have a 12-volt battery, यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर, इधर एक रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर, ठीक है। This one is 3 ohm, this one is again 3 ohm, ये इसको 4 ohm, 4 ohm, and this one is 6 ohm, this one is 5 ohm, ठीक है। and then we have battery. Now first of all it says, अभी अपने आप करने की कोशिश करो, फाइंड I1 एंड I2। तो I1 इधर जा रहा है ऐसे और I2 इधर जा रहा है ऐसे। फाइंड I1 एंड I2 at t equals to 0, 12 by 7 ampere and I2 is 0 for the first case। तो first case अर्निश ने I1 निकाल लिया, बेटा I2 अर्निश what about I2? अर्निश I2, साक्षी I2, वेरी गुड I2 is 0। यार सीधी सी बात है, अपन ने क्या केस लिया था कि यार t equals to 0, हम उसको क्या मान लेंगे? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब यहां पे ओपन है, अगर ओपन है तो यहां पे कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। दैट मींस ओनली I1 विल बी फ्लोइंग, मतलब हमको केवल इतना सर्किट मिलेगा।
तो जब I1 फ्लो करेगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 7 ओम। टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इन दिस केस इज 7 ओम। V is how much 12 volt, so I will be V by R, that is 12 by 7 amperes. Great, 12 by 7 amperes, ठीक है, and I2 is 0। अब बात होती है सेकंड केस की। सेकंड केस जहां पे हमारा एक 6 ओम का रेजिस्टर है और 4 हेनरी या 5 हेनरी जो भी था, 6 ओम का रेजिस्टर है और 4 हेनरी या 5 हेनरी का जितने का भी हमने इंडक्टर लिया। तब फॉर द सेकंड केस व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। स्टेडी स्टेट में क्या कंसीडर करते थे, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट मतलब ये क्या हो जाएगा, हटा दो, क्या फर्क होता है, हटा दिया, ये लो, ये बन गया हमारा सर्किट, ये बन गया हमारा सर्किट I1 I2। अब टोटल करंट निकालो पहले। टोटल करंट 3 and 6 दे आर इन सीरीज, सॉरी पैरेलल। इसका इक्विवेलेंट 2 ओम एंड 4 ओम, 6 ओम। भाई ये 2 ओम आ गया, 2 ओम 4 ओम 6 ओम, 12 वोल्ट का बैटरी, तो करंट कितना है, I इक्वल टू V बाय R, तो 12 by 6 दैट इज 2 एम्पीयर, दैट इज 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर करंट आ रहा है। अब हमको I1 और I2 निकालना है, ठीक है। तो पैरेलल में है दोनों, दैट मींस देयर पोटेंशियल विल बी सेम। If suppose over here the current is I1, तो बेटा I2 कितना हो जाएगा, 2 minus I1। I2 कितना हो जाएगा, 2 minus I1। Very good, 2 by 3 and 1 by 3, very good। Harnish and Aman, तो ये पैरेलल में, that means potential same होगा, this will be 3I1। क्लास 10 का पार्ट कर रहा हूं यार, is equals to 6 into 2 minus I1, ये हो जाएगा 3I1 is equals to 12 minus 6I1। ये इधर गया तो हो गया 9I1 is equals to 12। I1 is equals to 12 by 9, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो I1 is 4 by 3 amperes and I2 will be I2 कितना आ जाएगा, 2 minus I1, तो 2 minus 4 by 3, 3 to 6 minus 4, 2 by 3 amperes। I1 and I2। I hope this concept of LR circuit, how you are going to deal with L in initial state and the final state, और बीच में क्या होता है, this is very much clear to all of you। I hope this is very much clear to all। अच्छे से समझ में आ गया है हमको LR circuit, क्लियर हो गया। इनिशियल स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, और बीच में क्या होता है, बीच में एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, वो भी तुमने देख लिया, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट भी देख लिया। नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, दैट व्हाट वुड हैपन आफ्टर द स्टेडी स्टेट। ये तुम्हारा होमवर्क है, व्हाट वुड हैपन आफ्टर द स्टेडी स्टेट। तो ये तुम पता लगाओगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के साथ। वी हैव टू समथिंग टू डिस्कस। या प्लीज गो अहेड, या प्लीज गो अहेड, प्लीज फास्ट। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ भाई गो अहेड। यस you had your results yesterday, okay? Go ahead, go ahead. We just wanted to know what question went down in physics. Okay. Arnish, I'll do one thing. I'll text you this response. Yeah, sure. This is beta, this is a very good suggestion from your end rather. I'll surely welcome your suggestion. And I do this thing, मैं पूरा एनालिसिस आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा और कल इस पे डिस्कशन भी कर लूंगा, ठीक है ना। I do this thing, I really welcome this part of yours that you want to know and I will be giving it for all, okay? So with this I would like to end for the day. Thank you very much, enjoy your day, have a nice day, stay safe, stay home, take care and say Bharat Mata ki Jai. Thank you.